بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار. قال غوث الأعظم رضي الله عنه: قدم هذه على رقبة كل ولي الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. آپ حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس یقین کے ساتھ عقائد جہاں رحمت کون مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیخ باللہ اغثنی وامدنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا. افضل کرامات کے پہلے ایڈیشن میں جو بات میں نے 1976 میں پڑھی تھی وہ بار بار ذہن میں اس کے نقوش ابھرتے رہتے ہیں کہ اس میں حضرت سید درویش نور الدین قادری صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان جو اشرف صاحب بیوی کے شوہر اور ہمارے چھوٹے دادا پیر کے داماد ہیں نے لکھا کہ دادا پیر کے ارشاد تو کہ بندہ فانی بذات خود، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ بندہ فانی بذات خود ہوتا ہے تو باقی بوجود حق تعالی ہو جاتا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ میں مٹاتا ہے، بذات خود فنا ہو جاتا ہے، اپنے کو باقی نہیں رکھتا، تو پھر اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ باقی بوجود حق تعالی ہو جاتا ہے. یعنی اس کے جسم کے رونتے سے اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. اور ایسا ہی نہیں کہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ پروانہ شمع کا دیوانہ ہوتا ہے. اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ ہاں پروانہ شمع کا دیوانہ ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شمع تو دن میں بھی گھر میں رکھی ہوئی ہے، پروانہ رات ہی میں کیوں آتا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں در حقیقت پروانہ شمع کا دیوانہ نہیں ہے. رات میں جب وہ روشن ہوتی ہے اس کے کلیجے سے، اس کے دل سے جو نور کی شعاع نکلتی ہے، پروانہ در حقیقت اس نور کا دیوانہ تھا. اور وہ دن میں روشن نہیں ہوتی، رات میں روشن کرتے ہیں، اس لیے پروانے رات میں جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ شمع اگر اپنی اطراف ایک کانچ کے گلاس کو جو ہے اس کے حصار میں آ جاتی ہے تو جو در حقیقت پروانہ نور میں جل کر اپنے کو مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پہ گلوب چڑھا ہوا ہے، اس گلاس کے اطراف ہی پروانہ پھر کر پھر یہ دیکھتے ہیں وہ گلاس کو محفوظ کرنے کے لیے شمع بنانے والے اس پہ کچھ لوہے کی کاڑیاں لگا دیتے ہیں، تو اس کے چکر کاٹتے ہوئے پروانہ اپنی جان دے دیتا ہے. صبح تک کئی پروانے اپنی جان دے دیتے ہیں. تو کیا ہے؟ در حقیقت پروانہ شمع کا دیوانہ تھا نہیں، بلکہ اس کے کلیجے سے جو روشنی نکل رہی تھی اس روشنی کا دیوانہ تھا. در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سب بندے اور حضور کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو محبوبین ہیں ان کے دل جو اللہ کے عرش بن چکے ہیں، قلوب المومنین عرش اللہ، تو ان دلوں کا دیوانہ تھا، اس روشنی کا دیوانہ تھا. لیکن دیکھیے کہ پسلیوں کی چلمن میں محبوب نے اپنے دل کو چھپا لیا ہے. واہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں.
मजाज वाले इस शेर का मजाजी माना लेते हैं, हकीकत वाले हकीकी माना लेते हैं कि ये जो है चिलमन काड़ियों की बनी नहीं है, इसमें कोई महबूबा नहीं बैठी है, ये चिलमन तसलियों की बनी हुई है, इसमें अल्लाह का नूर, अल्लाह के महबूब बंदे का दिल उसका अर्श बन चुका, तजल्लियात अर्श उसके फसलियों उस चिलमन में है, उस चिलमन के चक्कर काटता रहता है मुरीद जिंदगी भर। और फिर उसके बाद अगर वो महबूब अपने आप को किसी कब्र में छुपा लेता है तो कब्र के चक्कर काटता है, फिर वो महबूब अपनी कब्र पर गुंबद बनवा लेता है तो गुंबद के चक्कर काट काट के परवाने चले जाए, अपनी जान दे देते हैं। यही एक मशहूर बात मुझे याद आई मालिक क़िबला के इस मुबारक मसूद उर्स शरीफ के मौके पर। जुल्फन बेग साहब क़िबला दादा पीर क़िबला के पाइन में, जिनका मज़ार छोटा सा वाइट चुना पड़ा हुआ है नामदार खां साहब के इस तरफ बाजू में, ये औरंगाबाद चले गए थे। जाने के बाद ज़ुल्फ़रामात में लिखा है कि सो गए और ख्वाब में देखे। पहले तो आपने खत लिखा, ख्वाब में क्या देखते हैं, एक चमेली की बेल है, दादा पीर क़िबला के हाथ में चमेली का फूल है और दादा पीर फरमा रहे अपने मुरीद से कि जुल्फन बेग हमारी रूह ऐसे निकली कि डाली हिली ना, फूल को तकलीफ हुई। ये ख्वाब से बेदार हुए जुल्फन बेग साहब क़िबला तो यकीन कर गए कि मेरे पीर दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये कौन सा लेटर था बताइए, ये तो ख्वाब है, ये खत भी नहीं पहुंचा था कि दादा हुजूर विशाल फरमा गए। आप बेचैन हो गए और फिर उससे कबल का एक वाक़या कि आपने खत अपने पीर मुर्शिद को की मोहब्बत याद में कि रोजाना उस नूर के जलवे करीब रहकर देखते थे। अब थोड़ा हिजाब आ गया, औरंगाबाद में है, वहां से आपने खत लिखा। खत के आखिरी में लिखा कि कदमों पे तेरे सर हो और जान निकल जाए, मरना तो मुसल्लम है, अरमान निकल जाए। दादा हुजूर ने इस खत को पढ़े और पढ़ के खत का जवाब लिखे। जवाब में अब शेर दादा पीर लिख रहे हैं अपनी तरफ से। वो क्या लिख रहे, कदमों पे तेरे सर हो और जान निकल जाए, मरना तो मुसल्लम है, अरमान निकल जाए। कि मुरीद पीर के कदमों पे मरे तो उसकी अरमान निकल जाना, ये अरमान है मुरीद की। तो दादा पीर पलटकर खत के जवाब में लिख रहे हैं कि जानों पे तेरे सर हो जुल्फन बेग, जानों पे जाने मांडी पर, जानों पे तेरे सर हो और जान निकल जाए, मरना तो मुसल्लम है, अरमान निकल जाए। जुल्फन बेग मैं भी ये चाहता हूं कि तुम्हारी मांडी पर मेरा सर हो और मेरी जान निकल जाए। ये कैसे मुरीद हैं और ये कैसे पीर? मुरीद को अगर मोहब्बत है पीर से तो ये बनवे नहीं है, पीर को भी उतनी ही मोहब्बत अपने मुरीद से है। और याद रखें, ख्वाब में देख रहे हैं और वहां से जुल्फन बेग साहब सफर किए, यहां मेरे पीर विशाल फरमा गए कि इस ख्वाब पर फैसला कर लिया उन्होंने कि ना डाली हिली ना फूल को तकलीफ हुई। जुल्फन बेग हमारी रूह ऐसे निकली। वहां से वो आए, रोते 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 दादा पीर के तदफीन मुबारक हो चुकी थी। आपने एक तहबंद अपनी रख दी थी, वो आएगा बहुत रहेगा, उसको ये मेरी तहबंद दे देना। और जब वो आए वाकई दादा पीर की तहबंद मिली, आंखों को लगा के रोते हुए काजी बैठ शरीफ के हाथों में चंद दिनों में उन्होंने भी अपनी जान दे दी। ये पीर से मुरीद की मोहब्बत और ये मुरीद से पीर की मोहब्बत। और पीर यकीनन हमारे उलमा ने चुप नहीं फरमाया कि मुरीद दुनिया के किसी हिस्से में हो, पीर का बातिन कहीं भी मुरीद रहने दो, उसके साथ पीर का बातिन लगा हुआ है। ये बातिनी नजर पीर की अपने मुरीद के साथ है। और ये चीज एक बात और मजे की यहाँ इस सुनवान पे याद आ गई। बुरहान खान, सुबहान खान, दो मुरीद राजस्थान के, उनका इंतकाल राजस्थान में हुआ और दादा हुजूर दरगाह शरीफ के इस इहाते में पलाश के दरख्त के पास आकर कहते हैं, कल सुबह क़यामत। उनकी तदफीन हुई राजस्थान में। अब कितने हजार किलोमीटर है वो वापस आप कर लीजिए यहाँ से राजस्थान, जहाँ अजमेर शरीफ वो राजस्थान। तो कहते हैं दादा पीर दरख्त के पास आके, कल सुबह क़यामत बुरहान खां, सुबहान खां इस दरख्त के नीचे से उठेंगे। तदफीन कहाँ हो रही? राजस्थान में। उठेंगे कहां से? काजीपेट शरीफ से। तो मालूम ही हुआ जो सच्चा मुरीद है, अब ये कोशिश नहीं करना है, कुछ ऐसे वाकयात जो होते हैं, मैं उन कड़वे वाकयात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमारी इस्लाह के लिए जरूर कहूंगा, कब्र के लिए मुकद्दमा भी डाला जाता है कि मेरे बाप की जगह यही होना चाहिए, मेरी माँ की जगह। और हमको तो ये दर्द मिलता है हम दुनिया के किसी हिस्से में दफन हो जाएंगे, उठेंगे यही सरजमीन से। ये एतकाद अगर का मुरीद का हो तो कोई झगड़ा ही बाकी नहीं है।
कहीं भी दफन हो जाए। दादा पीर के कई मुरीद हैं दुनिया के हिस्सों में फैले हुए, जगह जगह मदफून है, और उनकी करम जैसे अब्दुल रहीम शाह साहब कादरी मुस्तैदपुरा में दादा पीर के खलीफा आराम फरमा रहे, वनेमिया औरंगाबाद में आराम फरमा रहे, और कई मुकामात पर जो है आपके मुरीदन है, छोटे दादा पीर के मुरीदन है, और उनकी कब्रों से करामात का ज़ुहूर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ दादा हुजूर के सहन में ज़ाब्ते खान साहब भी आराम फरमा रहे हैं, भी राजस्थान के। आपकी खबर से तिलावत कुरान की आवाज़ आया करती थी, लोगों ने चर्चा किया, मशहूर किया बात, तो तिलावत कुरान की आवाज़ बंद हो गई। ये दादा हुजूर के मुरीद हैं, तो हमको चाहिए कि इन वाक़यात को, इन किताबों को जो लिखा गया है, फिर उसका एडिशन सैयद मुर्तज़ा कादी साहब किबला, बरकत पाशा साहब किबला ने ग्रीन किताब जो अफजल करामात के दादा पीर की पुरानी किताब जो उनके वालिद की लिखी हुई है, उस किताब को मुतक़द्दिमीन औलिया से दादा पीर की जिंदगी, करामात और आपके मुजाहिदात और रियाज़ात को आपने उनकी जिंदगी से आपने कंपेयर किया। उसके बाद बताया कि उसमें लिखा है पुरानी अफजल करामात में कि दादा हुजूर के अगर मुजाहिदात और रियाज़ात और करामात और फ़िरक़े आदात और आपके तसरुफात को देखें तो ऐसा लगता है कि दादा हुजूर अपने वक्त के जुनैद और बायज़ीद और शिबली हैं, अपने वक्त के ये हैं। और एक बात कहते खत्म कर दूंगा, हजरत शाह बोली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शान के हारे वहां मिले, पानीपत में आराम फरमा रहे। आपका विशाल होकर अरसा हो गया, लेकिन दादा पीर के हयात ज़ाहिरी की बात अफजल करामात में लिखी हुई है कि दादा हुजूर के मुरीदन आपके साथ साथ चिमटे हुए रहते थे। रात में चांदनी रात है और देख रहे हैं दादा पीर के दो मुरीदैन के एक पर्दा पड़ गया है और दो फकीर हैं, फुकराई लंगोट कसे हुए हैं, जिसमें एक दादा पीर है और दूसरे कोई बुजुर्ग हैं। वो मुरीदैन देख रहे हैं कि बांट खेल रहे हैं, ये फुकराई खेल है, दादा पीर के साथ कोई बुजुर्ग बांट खेल रहे हैं, फुकराई लंगोट कसे हुए हैं। उसके बाद वो खेल से फारिग हुए, दादा हुजूर वापस आए, मुरीदैन ने पूछा हुजूर एक तो आप थे फुकराई लंगोट कसे हुए, वो दूसरे बुजुर्ग कौन थे? तो दादा पीर ने फरमाया शाह अबू अली कलंदर थे मेरे साथ, बांट खेलने के लिए खाजीपेट आ जाया करते। दादा पीर इस वाक़े से क्या जाहिर कर रहे हैं? आप हयात ज़ाहिरी में है और सदियों का अरसा हो चुका, शाह अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह के पानीपत में तदफीन होकर वो बुजुर्ग यहाँ बाहर खेल जा रहे हैं। तो औलिया अल्लाह के पास हयात ज़ाहिरी हयात बातिनी हम कह लेते हैं, उनकी तो एक ही हयात है, वो जब फानी बजाते खुद हो जाते हैं तो बाकी वजूद हक ताला हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन जमीन से हमें मुशर्रफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।